Uh, let me एक second. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the administrator at Parsa Eco Pakistan. First of all, I would like to extend Eid greetings to all, and I hope you have celebrated it with your loved ones. Welcome all of you to our Hepatitis Echo. Today's session is based on case-based discussion with experts. Before I introduce our experts for tonight's session, let me go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project Echo based in USA with the objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. Our expert for today's session is Dr. Bushra Ali. She is part of our faculty, Echo Program Lead in Punjab and Echo Clinical Consultant. She is Assistant Professor Gastroenterology, Hepatology at Fatma Memorial Hospital, Lahore. Before I invite her, Dr. Kainat will be presenting the cases. So I will hand over to Dr. Kainat from here. Thank you very much. Dr. Kainat, I would be sharing the screen and you would be presenting. Ji, Are sir. you fine with Ji, me? sir. Can you see the screen now? Yes, I can. Okay, please. Assalamualaikum. My name is Dr. Kainat, and today's the first case is a 60-year-old male who presented with complaint of epigastric burning and pain, postprandial fullness, burning in feet, and reduced appetite and dark-colored urine since 5 months. He was diagnosed as anti-HCV positive in November 2020. His investigations on 19th December 2020 are as follows. HB was 16.8, TLC 7.68, platelet 195, urea 31, creatinine 1.1, bilirubin 0.6, ALT 42, AST 63. Alkaline phosphatase 222, albumin 3.5. Sugar is 69, which is fasting, and EPRI score was 0.9. His HCV RNA quantitative is, as mentioned, 1039798. On ultrasound abdomen, his liver was normal and there was only polylithiasis. Now the question is that does he require any further investigation and what treatment should be offered to this patient? Thank you. Thank you, Kainat. So basically, we have an 60-year-old gentleman with rather dyspepsia-like symptoms for about 6 months, and apparently there is nothing special in the family history. And investigations, Dr. Kainat has elaborated, an ultrasound, the only mention is of polylithiasis. So the questions are what further investigations should be done and what treatment should be offered. Before we go into that, Dr. Bushra, I would like to open up the discussion about his abdominal symptoms and polylithiasis. In the background of hepatitis C, how do you see this symptom and how would you navigate through these symptoms in this patient? Ji Bushra. You're right. This patient appears to have, can you hear me? We can hear you, Bushra. So I was saying that there is an overlap between the symptoms of dyspepsia and the presence of hepatitis C. The hepatitis C part might be a silent disease, but we do know from literature that there is an increased incidence of gallbladder stones in patients who have hepatitis C. But in any case, in a 60-year-old who has epigastric pain,
this patient might be a case in whom the gallbladder stones are causing trouble to him. But this patient is not a very good candidate to go in for surgery right away. So one, I would like to check this patient for his Helicobacter pylori status. And two, I would also like to ask him to delay his treatment, delay his surgery till after hepatitis C has undergone eradication, because that's what the surgeon would prefer. At the same time, somebody who has a reduced appetite and has dyspepsia for the last 5 months and is 60 years old, I would go for an endoscopy also. This is regardless of his hepatitis C that we are going to treat, but we also need to pay attention to his dyspepsia symptoms. So an endoscopy, because he has new onset dyspepsia, somebody who is more than 55 years old, American College of Gastroenterology recommends going in for an endoscopy. 2, rule out Helicobacter pylori. 3, defer his surgery because this gallbladder is causing him trouble till after his hepatitis C has got eradicated. It's a 3-month treatment, and the surgeon would prefer to have a hepatitis C negative patient. Thank you. Thank you, Bushra. I think very nicely explained. So now we move on to question number 1 about further investigation that you would consider. Kindly, when you explain this, keep both things in mind. कि primary care physician के लिए कितना काफी होगा, और of course आप एक teaching hospital में हैं और आप इसको कैसे देखती हैं, तो दोनों एंगल से I would like to hear from you. वैसे तो इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है हेपेटाइटिस सी ट्रीट करने के लिए, जो जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो तो ठीक है. वी नो दैट द पेशेंट इज नॉट सेरोटिक एंड वी नो दैट द पेशेंट इज ट्रीटमेंट नाइव, presumably treatment naive, and he is ready for treatment, antiviral treatment. लेकिन दो चीज़ें ज़रूर हैं. One, the patient's co-infection with hepatitis B needs to be ruled out. We have to remember that hepatitis B and C work together. They often get infected together because the mode of transmission is the same, almost the same. Contaminated blood and blood products, contaminated tools. खैर थोड़ा सा है कि जो मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा है हेपेटाइटिस बी की, या इट इज़ hepatitis C on the whole, B and C can occur together because of the same mode of transmission. So वो rule out हो जाना चाहिए. History में high risk behavior देख लें and then tell the patient that HIV needs to be checked. ऐसे HIV blindly ना लिखें. उसकी वजह ये है कि HIV का एक टैबू है, एक स्टिग्मा है, और वही पेशेंट आपसे लड़ने आ जाएगा कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर मेरा टेस्ट क्यों लिखा है, स्पेशली अगर वो पॉजिटिव आ गया. हमारे यहाँ पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी भी थोड़ी सी डाउटफुल होती है, तो इसलिए अगर फैमिली को पेशेंट से पहले पता लग गया तो वो नया मसला खड़ा हो जाएगा. सोशल इश्यूज हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं. हर एक पेशेंट का हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, हर एक पेशेंट का HIV चेक करना इतना ज़रूरी नहीं है. लेकिन ये याद रखें, अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया फिर प्लीज़ ज़रूर HIV चेक करना है, वो फिर मैंडेटरी हो जाता है. तो सी के लिए खैर नहीं, इतना 100% नहीं है. आप हिस्ट्री ले लें रिस्क फैक्टर्स की. तीसरी चीज़ डायबिटीज़ रूल आउट करनी है. खैर इनका फास्टिंग ठीक है, 69 आया हुआ है, लेकिन ऑन द होल को इन्फेक्शंस नीड टू बी रूल्ड आउट इन दिस केस. और गॉल ब्लैडर का अगर अल्ट्रासाउंड पे अच्छा होता है, इफ दे हैड कमेंटेड ऑन 2 थिंग्स, द गॉल ब्लैडर वॉल थिकनेस एंड पेरिकोलिसिस्टिक एडीमा. ये दोनों साइंस, द नॉर्मल थिकनेस ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल इज 4 millimeters. अगर 4 से ज़्यादा है एंड पेरिकोलिसिस्टिक एडीमा है, दैट मीन्स द पेशेंट हैज़ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस. वो फिर बात मेरी उल्टा हो जाएगी जो मैंने पहले कही है. फिर हमें पहले गॉल ब्लैडर को तवज्जो देनी पड़ेगी, बिकॉज देन इट इज़ रियली कॉजिंग ट्रबल टू हिम. एपिसोडिक पेन है तो फिर तो समटाइम्स पेशेंट्स लिव विद इट. तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में मेरे नज़र में. डॉक्टर साहब आपका क्या कुछ आप ऐड करना चाहेंगे?
नहीं, I mean, I think I don't have anything to add. We will, मेरे ख्याल में we'll take up question number 2 and then we will open up for discussion. और मैं अपने सारे colleagues who are joining, I would like to ask them, क्योंकि ये देखने में बड़ा simple लगता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो day in and day out हमारी practices में आ रहे हैं. I'm sure आपकी general practice में ये लोग present करते हैं. तो बुशा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट ट्रीटमेंट आर यू गोइंग टू ऑफर दिस पेशेंट. तो मैं आपसे पूरा ट्रीटमेंट जानना चाहूंगा, इसके सिम्टम्स में भी और हेपेटाइटिस के बारे में भी. आप जब इसको एक नुस्खा लिख के देंगी, इफ यू आर सेटिस्फाइड कि मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन है, हमने उसको सर्जरी का भी बता दिया, हमने बी भी नेगेटिव कर दिया, HIV भी नेगेटिव कर दिया, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो अब आपने उसको एक नुस्खा लिख के देना है, तो आप उसमें किस तरह से दोनों चीजें कवर करेंगी. तो उजैर, you can stop share. Dr. Bushra will answer and we will have a group discussion on this case also. जी Dr. Bushra. I start off with prescription of vaccination against hepatitis B. और मेरा तरीका ये होता है कि मैं इस तरह लिखती हूँ, Engerix B 20 या जो भी और भी काफ़ी सारी Amvax भी मिल रही थी पिछले दिनों, 20 माइक्रोग्राम्स जो एडल्ट डोज है, मैं उर्दू में लिखती हूँ बाजू के गोश्त में लगवाएं, क्योंकि इसकी जो इंट्रामस्कुलर इंट्राग्लूटियल जो है वो इफ़ेक्टिव ही नहीं है. तो इसलिए वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नर्सिंग भी कभी कभी गलती कर जाती हैं. तो वो लिखना इंस्ट्रक्शंस में मैं तो पेशेंट को बताती भी हूँ कि अगर नर्स आपको इंट्राग्लूटियल लगाने भी लगें तो आपने उनसे कहना है नहीं, ये देखें ये डॉक्टर साहिबा ने लिखा हुआ है कि मेरे बाजू में लगना है, तो आप प्लीज़ मुझे बाजू में लगाएं. प्री फिल्ड सिरिंज आती है और मैं लिख देती हूँ डेट, जिस दिन मुझे पेशेंट ने देखा है उस डेट, फिर उससे 1 माह बाद, फिर उससे 6 माह बाद, 016. यूजुअली हम ये रेजिमेंट फॉलो करते हैं. और देयर आर अदर काइंड्स आल्सो, वो तो खैर हमारा हेपेटाइटिस बी का टॉपिक जितनी दफ़ा कवर हुआ है हम लोग वो कर चुके हुए हैं कि 0136 भी है, 01 to 3 and 12 months भी है, लेकिन वो कुछ उसकी अपनी शराइत हैं जिन पे करना है. पहला तो मेरा ये होता है. दूसरा, अब इस पेशेंट को हो रही है डिस्पेप्सिया, और हम सब ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, पहला रिएक्शन ये होगा हम इनको PPI देंगे. नाउ इफ यू रीड EASL गाइडलाइंस, ओमेप्राजोल या जितने PPIs हैं, दे डू नॉट गो विद वेल्पाटास्फिर, और हमने वेल्पाटास्फिर देनी है इन कॉम्बिनेशन विद सफॉस्फोबिर टू दिस पेशेंट इन 3 months टाइम, फॉर 3 months, क्योंकि वही इस वक्त सबसे अच्छा रेजिमेंट हमारे पास अवेलेबल है और वो इतना एक्सपेंसिव रह भी नहीं गया हुआ. अगर सफॉस्फोविर डेक्लाटसविर देना चाहें तो वो 6 months की ट्रीटमेंट है. दिस पेशेंट डज नॉट नीड रिबाविरिन, द पेशेंट डज नॉट हैव सिरोसिस. तो अब जो दूसरा मैं PPI लिखूंगी वो प्रेफरेबली मैं ओमेप्राजोल लिखती हूँ, और नादे जो नॉर्मल डोज है वो हेपेटाइटिस बी की 20 माइक्रोग्राम्स है एडल्ट्स के लिए, और जो बच्चों के लिए 10 माइक्रोग्राम्स होती है. तो जो PPI है वो दी जाएगी 2 hours का गैप होना चाहिए. तो मैं ऐसे लिखती हूँ, ये नाश्ते से पहले लें और नाश्ते के 2 घंटे बाद आपने हेपेटाइटिस C की दवा लेनी है. कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ये भी कहते हैं अच्छा फिर हम डॉक्टर साहिबा दोपहर को ये वाली दवाई खा लेंगे हेपेटाइटिस C की, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये इकट्ठे नहीं ली जा सकती. दे हैव ड्रग इंटरैक्शंस, ये इकट्ठे नहीं लिया जा सकता. तो इसलिए वो दोपहर को, और PPI जो है वो तो दिया ही नाश्ते से पहले दिया जाता है. अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो इनकी एपिगैस्ट्रिक बर्निंग थोड़ी हो रही थी, एक एंटासिड ऐड किया जा सकता है. दैट्स इट. बहुत ज़्यादा मेडिकेशन से बॉम्बार्ड नहीं करना. रिबाविरिन नहीं दे रहे, सो द पेशेंट डज नॉट नीड फोलिक एसिड. तो इसलिए ये 3 दवाइयाँ मैं इस पेशेंट को दूंगी. और अगर पेशेंट कहेगा नहीं मेरी बर्निंग नहीं ठीक हो रही, मैं बेड टाइम 40 मिलीग्राम्स ऑफ फेमोटिडीन ऐड कर दूंगी, बस, उसके अलावा नहीं. This is the prescription that I am going to give. A vaccination against hepatitis B, antiviral treatment, PPI with adjustment of the timing, and an antacid. जी, thank you very much. Especially ये जो PPI का introduction है, I mean, I'm sure there will be questions about this as well. PPI हम अपनी practices में I'm sure हम सब across the board बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं.
जनरली अगर मुझे देनी भी हो, आजकल ऑप्शन फेमोटिडिन की अवेलेबल है, लेकिन अगर पीपीआई देना पड़े मैं यूजुअली उसको इवनिंग टाइम पे ले जाता हूँ यूजुअली। आई डोंट नो बुशरा, इसमें कोई ब्रांड के बारे में कमेंट है आपके पास? सॉरी, नॉट अबाउट द ब्रांड, अबाउट द क्लास ऑफ पेंटोप्राजोल, esomeprazole, meprazole, rabeprazole, dexlansoprazole भी है और lansoprazole, इनमें कोई ऐसा है जो गाइडलाइंस में ओमेप्राजोल का क्लियरली लिखा हुआ है कि आप देना चाहें तो ओमेप्राजोल दे दें इन कॉम्बिनेशन विद वेल्पाटासिविर विद एटलीस्ट 2 आवर गैप। बाकी पीपीआईज का उन्होंने इतना ज्यादा उसके ऊपर जोर ही नहीं दिया हुआ, तो इसलिए अगर मैंने एंटीवायरल ट्रीटमेंट देनी है तो मैं फिर ओमेप्राजोल देती हूँ। और जो उन्होंने बाकियों का इतना क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ, उन्होंने ये इंटरेक्शन जरूर लिखी है, लेकिन उन्होंने जब लिखा हुआ है ना, अपना एक टेबल है ईजल की, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप ओमेप्राजोल दे दें। और जो एंटासिड्स हैं, फॉर एग्जांपल गैविस्कॉन है या बाकी हैं, इनके बारे में आपका क्या है? All antacids should in any case be taken about 1.5 hour to 2 hours after meals। हमारे पेशेंट साथ ही उसके फौरन बाद ले लेते हैं, वो तो वैसे भी फूड की एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करती है एंड इट कैन लीड टू अनीमिया ऑल्सो। तो इसलिए वो तो है ही, खाने से उसका ताल्लुक है, तो वो एंटासिड्स एंड पीपीआई दोनों लिखे हुए हैं गाइडलाइंस में, तो इसलिए उनका गैप आपको रखना है 2 आवर्स का। ओके, डॉक्टर कायनात हैज अ क्वेश्चन। जी कायनात। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि ट्रीटमेंट जब हम इस पेशेंट को देंगे तो हम 3 मंथ्स के लिए जाएंगे वेल्पाटासिविर और सफॉस्पोविर पे, और अगर हम उस पे नहीं जा रहे तो फिर हम सॉफ्ट डेक का ट्रीटमेंट देंगे 6 मंथ्स के लिए विदाउट रिबाविरिन। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर पेशेंट नॉन सिरोटिक है तो फिर भी हम सॉफ्ट और डेक 6 मंथ्स के लिए देंगे? और आपको जो वेल्पाटासिविर है वो 3 मंथ्स के लिए है। डिक्लाटोस्फेर का तो वो डिपेंड करता है ना, पहली वाली पिछली गाइडलाइंस में अगर जाएं तो वो कहते हैं 3 to 6 मंथ्स के लिए आप दे सकते हैं। तो वो अगर आपका 3 मंथ्स के लिए आपके ख्याल में रिस्पांस आ जाता है एंड तो शॉर्ट, तो नॉन सिरोटिक तो है, यू आर राइट, 3 मंथ्स के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन हम पहले एक जमाने में सॉफ्ट डैक्ला 6 मंथ्स के लिए पूरा कर रहे थे। जी, हम लोग वैसे मैं क्लियर कर दूं बुशरा, फॉर जो हमारी अभी हेल्थ फाउंडेशन वालों के साथ भी जो गाइडलाइंस हैं, एक तो अब वो लोग एप्री को 1.5 पे ले गए हैं और जो कि हम अभी भी 1 यूज करते रहे हैं, और दूसरा 3 मंथ्स आर गुड फॉर दीज पेशेंट्स क्योंकि उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बाकी सारी चीजों के लिए, क्योंकि एप्री इज लेस देन 1 इन दिस केस और द पेशेंट इज ट्रीटमेंट नाइव, पहले कोई एक्सपोजर नहीं है, तो यूजुअली दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। Any other question? There is a question in chat about prokinetics for postprandial fullness and regarding thyroid function test. जी बुशरा। प्रोकाइनेटिक्स तो दिए जा सकते हैं, डोमपेरिडोन दे दें, आइटोप्राइड दे दें, उनका कोई ड्रग इंटरैक्शन नहीं होता। As far as thyroid function tests are concerned, in a 60-year-old man, no, you don't actually need them. You're not planning interferons in this patient. Okay. Any other question? Assalamu alaikum, Dr. Anwar Bhutta from Okada ji. जी डॉक्टर साहब, good to hear from you and see you also. जी, Thank you very much. हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो गॉल स्टोन्स होते हैं, तो ये यूजुअली उसमें कोलेस्ट्रॉल का एलिमेंट शामिल होता है बाइल साल्ट्स वगैरह में, तो क्या इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं चेक करना चाहिए, उसको मैनेज नहीं पहले करना चाहिए, बाद में इसका एंटीवायरल शुरू करें? जो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है उसका डायरेक्टली कोई क्लिनिकल इम्प्लिकेशंस नहीं है एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने या ना करने में। और आपकी बात ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और चेक कर लेना चाहिए है, लेकिन इस पेशेंट की कोई और कोमोबिडिटीज़ नहीं बताई हुई कायनात ने कि उस पेशेंट को हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ उनकी डिस्कवर भी नहीं हुई, तो वो डाउन द लिस्ट तो चली जाएगी, लेकिन लिपिड प्रोफाइल चेक करने में हर्ज नहीं है as long as the patient can afford it, तो फिर तो ठीक है। एक और बात है कि ये इसका चूंकि ब्लड शुगर फास्टिंग चेक हुई है, क्या इसमें HbA1c नहीं चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सिंगल रीडिंग उसकी एट द एज ऑफ 60 उसको हम
फाइनल डिक्लेयर तो नहीं कर सकते कि वो बस पक्का हो गया कि इसको डायबिटीज नहीं है। HbA1c डॉक्टर साहब उसमें बस ये कॉस्ट का मसला आ जाता है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव जहाँ ट्रीटमेंट करें, तो इसलिए जहाँ हम जितना फास्टिंग करवा लेते हैं। हीमोग्लोबिन नहीं, A1C में एक्सपेंसिव पड़ता है ना। जहाँ पे सर्जरी होनी है या एंटीवायरल 3 महीने के लिए देना, मेरा ख्याल है इतना कॉस्ट इफेक्टिव को मद्देनजर तो नहीं रखना चाहिए कि अब इसमें आके हम बैठ जाएं कि हम कॉस्ट इफेक्टिव कर रहे हैं। बाकी उसके कितने ये टेस्ट हो रहे हैं, उसके जो हेपेटाइटिस, ये जो हमारे PCR वगैरह, वो बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं उसमें भी। अकेला HbA1c से क्या होता है? नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। हीमोग्लोबिन A1C भी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज के लिए यूज होता है, फास्टिंग और रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी होते हैं। वो तो आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है ना। इसमें डॉक्टर बुट्टा इस तरह से है, मैं थोड़ा सा इसमें इंटरवीन करूंगा कि जो हमारा जिस तरह हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का जो है तरीक़ाकार, अब आप इसको थोड़ा सा ज्यादा भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक हेपेटोलॉजी क्लिनिक में और इस तरह काम कर रहे हैं, यूजुअली हम उससे डेविएट कम करते हैं। फिर हमारे पास जो है, जो पेशेंट्स हैं वो फ्री दिखाने आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट और ये सारा कुछ, और ये वो लोग हैं जो अब मेजॉरिटी में हैं। तो यूजुअली व्हाट वी डू इज कि हम बेसिक, मतलब जिस तरह मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, हम CBC, LFT और क्रिएटिनिन कराते हैं, शुगर बास्केट कराते भी नहीं है। एप्री अगर, और PCR ऑफ कोर्स, और एप्री अगर लेस देन 1 है, जो कि अभी 1.5 कर दिया हुआ है, तो वो हम उसको फिर सफॉस्फोविर और डेक्लाटास्पिर 3 मंथ्स के लिए, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर ऑफ कोर्स हम अल्ट्रासाउंड और बाकी चीजों के ऊपर, जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन भी देख लेते हैं, सिरोसिस का क्या स्टेज है, वो सारा कुछ हम असेस करने की कोशिश करते हैं। अभी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में सॉफ के साथ जो वेल्पाटेस्पिर है वो अवेलेबल नहीं है, अभी डेक्लाटास्पिर ही चल रही है। और जो है, तो इसलिए फिर हम बाकी टेस्टों में, जो आपकी बात है वो अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो ऑफ कोर्स हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर बुशरा ने कहा कि ये जो वैक्सीन का, दैट एज्यूम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको हमें ज़रूर जहन में रखना चाहिए। डॉक्टर फारूक हैज़ अ क्वेश्चन। जी फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है मैडम से कि सॉफ्ट वेल रजीम जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को हमें मद्देनजर रखना चाहिए और कितना रखना चाहिए। अगर एक पेशेंट स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का है तो उसको कैसे मैनेज करना है, और अगर एक पेशेंट एक्टिव है यानी कि उसको नॉन एस्टी डिविएशन MI है या MI है, तो उसमें हमें वेल्पर तस्वीर के हवाले से कोई इंटरेक्शंस या कितनी केयर करने की ज़रूरत है? इसका डॉक्टर साहब आसान ये है कि अगर तो स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप पेशेंट को एंटीवायरल ट्रीटमेंट दें। ये उस ज़माने की बात है जब रिबाविरिन देते थे और एनीमिया होता था, तो हम एक्टिव इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में या रीसेंट एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम में नहीं करते थे। लेकिन अभी भी एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम के 14 डेज बाद आप ट्रीट कर सकते हैं हेपेटाइटिस C को विद सफॉस्फोविर एंड वेल्पाटेस्पिर। जो दूसरी चीज़ है वो जो एक्टिव इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, उसमें तो फिर प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं ना। क्लिनिकली पेशेंट को स्टेबल होना है फॉर एंटीवायरल ट्रीटमेंट। ट्रीटिंग हेपेटाइटिस C is never an emergency. So we stabilize the patient from the cardiac point of view and then we start with antiviral treatment. जहाँ तक ड्रग इंटरैक्शंस का ताल्लुक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की ऐप है, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वो आप अपने स्मार्टफोन्स पर डाउनलोड कर लें। जो मेडिसिन पेशेंट को मिल रही हैं उनके साथ आप ड्रग इंटरैक्शंस उसी वक्त सिटिंग इन द क्लिनिक चेक कर सकते हैं। तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आई थिंक जो इसमें सबसे रेलिवेंट है वो एमायोडरोन है गालबन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जिसका जिसमें गालबन रेड में है के साथ तो नहीं। जी, क्योंकि सफॉस्फोविर के साथ आ जाता है ना। सफॉस्फोविर के साथ। जी, सफॉस्फोविर के साथ। जी, फारूक, एनी कमेंट ऑन दिस? आप सर ये एक बहुत अच्छा केस था और ये हमारे क्लिनिक्स में बड़ा कॉमन है और हम इसको बहुत इजी लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इवन तो अक्सर ये होता है कि हमारे तो सोनोलॉजिस्ट भी चूँकि पेरिफेरी में इतने अच्छे नहीं होते,
तो वो फिर कोलिडोकोलिथासिस अक्सर मिस कर जाते हैं, तो वो फिर हेपेटाइटिस सी विद कोलिलिथासिस बड़ा इशू बन जाता है। अभी कल मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया, सर्जन ने रेफर किया, उन्होंने कंपनसेटेड सिरोसिस था और बस उन्होंने जल्दी की कि मैं बस आपका स्टोन निकाल देता हूँ, पिता निकाल देता हूँ। तो उसके सडनली पेशेंट जो है उसके बाद डिकम्पोजिशन में गया और अभी पेशेंट लिवर फेलियर में एडमिट है हमारे पास। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि कंपनसेटेड सिरोसिस के ऊपर विदाउट मेडिकल ओपिनियन लेते हुए उसको ऑपरेट कर देना और उसके बाद सडनली पेशेंट का डिकम्पनसेट कर देना, और पेशेंट बहुत मुश्किल से इस चीज़ से सर्वाइव करते हैं। Gee, I totally agree with you, Farooq, and unfortunately, this still happens. बुशरा, जो ये लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की ऐप है, there is a question about drug interaction. It's a very good app. आप यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के नाम से ये बुशरा मेरे ख्याल में इसका, हाँ जी, उसको लिवरपूल हेपाई चार्ट कहते हैं, मैंने लिखा है जी चैट में। जी, लिवरपूल हेप आई चार्ट। तो आप इसको कर लें तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको, आप पहले एक ड्रग का नाम फॉर एग्जांपल वो आपसे फॉस्फोबेट टाइप करेंगे, फिर आप आगे एमाइड्रोन टाइप करेंगे तो आपको रेड आ जाएगा और स्टोरी बेबी की एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। एडमिनिस्टर इस तरह से आ जाता है, उसके साथ ही लिखा हुआ आ जाता है, जैसे एमाइड्रोन में खास तौर पे। और ये बाकी के लिए भी है, सिर्फ ये नहीं है कि ये लिवर के ये है, आपके पास ड्रग ए वर्सेस ड्रग बी, तो यू कैन यूज इट, इट्स अ वेरी गुड ऐप। डू वी हैव अनदर केस, Uzair? Yes, sir, we have another case. Should I start sharing the screen? जी, please go ahead. Ji, Dr. Kainat, can you see my screen now? Ji, sir. Please carry on. Okay. So the second case is there is a male, 62 years old male, who presented with complaint of abdominal distension and constipation since 2 weeks. He was diagnosed with HCV in 2007, for which he took antiviral treatment twice. In 2007, he took standard interferon, and in 2014, he took PEG, Riba, and Sofosbuvir. There is no other comorbidity. On examination, his abdomen was soft and ascites was positive. Chest was bilaterally clear. His investigations of March 2021 are as follows. HB is 9.6, TLC 10.5, platelet 94, creatinine 1.65, sodium 134, potassium 4.5, bilirubin is 2.3, ALT 22, AST 20, alkaline phosphatase 222, albumin is 2.8, PTINR 24 by 2.3, AFP 4.7, his CTP score is 4.9, HCV-RNA PCR is not detected. On ultrasound abdomen, there was cirrhosis of liver, moderate splenomegaly, and moderate ascites. The question is that how should we counsel this patient and what should be the management in this case? Thank you. Thank you, Kainat. Again, 62 years gentleman, or as you can see, he has now decompensated cirrhosis, and he has achieved SVR with PEGs of Riba in 2014, as the current HCV RNA is negative. And unfortunately, the labs, they don't look good. I think everything is in front of you. I'll be concerned about creatinine value also. I'm sure it will affect the MELD score in a bad way. Albumin is 2.8, INR is high. Alpha fetoprotein in a way is reassuring. It's not high, and same as in ultrasound, there is no mention of any lesion in the liver. So, Bushra, how are we going to counsel this patient? Again, इसमें आई थिंक आप प्राइमरी केयर को भी ज़हन में रखें और एक टर्शरी केयर सेटिंग में जो आपका ओपीडी होगा उसको भी ज़हन में रखें। तो प्राइमरी केयर को क्या बताना चाहिए और आपको क्या
आप किस तरह से इसको डील करेंगे? जी बुशरा। और जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं उनके तो पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये पेशेंट जो है अगर देखा जाए decompensated cirrhotic, ये preferably should be referred to a specialist. One, एक तो इनका he appears to be developing hepatorenal syndrome, तो उसको हैंडल करने की ज़रूरत है. Then advanced liver disease है, जो सब हम करते हैं, surveillance endoscopy etc. वो सब होनी चाहिए. So better to be managed by a tertiary care hospital. जो बट एट द सेम टाइम अगर प्राइमरी केयर फिजिशियंस थोड़ा सा हमें हेल्प करना चाहें, I would be very interested in finding out why this patient developed cirrhosis or decompensated. कोई इन्होंने हकीम मेडिकेशन खाई थी, बिलोरोबिन 2.3 है, कोई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज लिए थे. What led to his decompensation in about 6 or 7 years down the road? Does he have a co-infection? Maybe he had hepatitis B, or this patient had a fatty liver, underlying fatty liver disease that has ended up in cirrhosis and its decompensation. Maybe hepatitis C was not his problem at that time leading to cirrhosis. वो तो cure हो गई 2014 में. And what was the status of the liver in 2014? वो भी, I would be interested in that also. तो थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स का सैग कैलकुलेट करना होता है, साइटिक टैप होना चाहिए डायग्नोस्टिक, तो इसलिए टर्शरी केयर में जाना बेहतर होगा. As far as counseling is concerned, वही जो मैंने अभी अर्ज किया, this patient needs to be looked after by a specialist. 2, we need to find out if there is some other reason behind his cirrhosis. 3, this patient needs to be treated on lines of possible, investigated and treated on lines of possible hepatorenal syndrome. जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वी आर स्टार्टिंग आवर पैलिएटिव केयर प्रोग्राम एको फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे. उज़ैर अभी आपको उसके बारे में फर्दर बताएंगे. अगर फैमिली और अगर जिस तरह के जो डिटेरियोरेटेड पेशेंट्स हैं, तो वी विल ऑल बी टॉकिंग हाउ टू टेक केयर ऑफ देम क्लोज टू होम, and especially if they are not willing to do anything else. So obviously we must be knowing about the management plans. लेकिन जो हमारे यहाँ होता है बाज़ का अल्ब्यूमिन लगा के और दूसरी चीजें लगा के जब पे उनको sometimes आउटकम इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा होता, तो we will all be discussing about palliative care with special focus in primary care. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्लान. कुछ ना आपने काफी कुछ तो बता ही दिया है. अगर आप इसको, आई थिंक यू विल हेपेटोरेनल है, आपने डायग्नोस्टिक टैप करना है इन योर हॉस्पिटल, एंड देन यू व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड आउटकम डू यू एक्सपेक्ट, एंड गुड और बैड आउटकम में दोनों सूत्रों में आप इसे किस तरह से गाइड करेंगे? जी. One, the patient needs to be has to undergo a complete examination urine, और वो हम जो कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्सक्रीटेड सोडियम, फीना उसको कहते हैं, यूरिनरी सोडियम एंड यूरिनरी क्रिएटिनिन चेक करके तो उसको फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट किया जाता है, और उससे आप HRS प्री रीनल वर्सेस एक्यूट किडनी इंजरी कैलकुलेट करते हैं. एक तो वो ज़रूरी. दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि हमें बाकी कॉजेज़ देखने हैं. जो इस पेशेंट के लिए ज़रूरी है वो ये है कि एज सून एज पॉसिबल 2 चीज़ें हो जाएं. 1, सैग कैलकुलेट करें, और दूसरा SBP रूल आउट कर लें. एनी काइंड ऑफ डीकम्पनसेशन माइट बी अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, तो वही डायग्नोस्टिक एसाइटिक टैप आ जाता है. एंड देन इफ it is not there, is including a culture sent for the ascitic fluid, तो फिर तो पेशेंट कैन बी स्टार्टेड ऑन डायूरेटिक्स. डायूरेटिक्स देने का तरीका जो ईज़ल की गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि यू स्टार्ट विद 100 milligrams of spironolactone and 40 milligrams of Lasix. Start with spironolactone, then add
Lasix या furosemide 40 milligrams 3 days later, and then you gradually increase the dose by 40 milligrams every day till you have started to mobilize the fluid. Ideally, the patient should be losing weight by 0.5 kilograms to 1 kilogram in one day. That he will tell you whether this ascitic fluid is getting mobilized or not. तो ये तो हो गई management of ascites, ruling out, checking his SAG, ruling out SBP. But जो मैंने आपसे कहा था कि FeNA calculate करें, and if you find that it is less than 1, it is most probably HRS. फिर उस केस में diuretics will not be the answer. The answer will be albumin, and in combination कभी dopamine भी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन अक्सर तो हम देते हैं terlipressin and albumin combination में. Albumin जितनी डोज दरकार है वो तो हमारे पेशेंट्स यूजुअली अफोर्ड नहीं कर पाते. हम लोग फिर उनको सिर्फ दे देते हैं जो लो ऑन सोडियम एल्ब्यूमिन होता है, लो सॉल्ट एल्ब्यूमिन, एटलीस्ट वंस अ डे दे दें फॉर 5 days. यूजुअली इट्स इफेक्टिव. एंड terlipressin 1 milligram 8 hourly to start with, can go up to 6 hourly. You can even go up to 2 milligrams 6 hourly, but that's it. लेकिन उससे पहले इस पेशेंट की ECG हो जानी चाहिए before starting the patient on terlipressin. Usually 14 days की ट्रीटमेंट किताब रेकमेंड करती है, गाइडलाइंस भी HRS की, बट यू कैन नॉट कंटिन्यू एल्ब्यूमिन फॉर 14 days. इवन terlipressin इज क्वाइट एक्सपेंसिव. तो कट ऑफ है वो क्रिएटिनिन ऑफ लेस दैन 1.5 है. तो आप उसको रेगुलरली डेली बेसिस पे क्रिएटिनिन चेक करते हैं, एंड व्हेन 1.5 से नीचे आ जाता है क्रिएटिनिन and it is getting maintained for 24 to 48 hours, फिर आप बंद कर सकते हैं albumin and terlipressin. In the meanwhile, since the patient is with you, hepatitis B है, negative है, vaccinate करें, surveillance endoscopy करें. The platelet count is 94. So वो जो EASL guidelines हैं और जो ASG हैं, बेविनो भी यही कहती है कि अगर आपका पेशेंट का platelet count less than 150 है, तो आप एक surveillance endoscopy करें. और इनका तो डेफिनेटली उसी क्राइटेरिया में फॉल करता है. तो सर्विलेंस एंडोस्कोपी मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि बिफोर एन इमरजेंसी हैपन्स, कि आप आए हैं, मेलिना हो रहा है, हेमेटोमेसिस हो रहा है, हम आपको ब्लड अरेंज करने के लिए भगा रहे हैं, उससे पहले ही आप एंडोस्कोपी करवा के तो बैंड लाइगेशन हो जाए तो इमरजेंसीज को अवॉइड किया जाता है. दिस इज़ हाउ आई काउंसल माई पेशेंट्स. दूसरा जो है इस पेशेंट का प्रॉब्लम, अल्ट्रासाउंड पे डॉपलर का नहीं जिक्र किया कायनात ने कि हमने क्या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एंड बट क्यारी सिंड्रोम रूल आउट किया है कि नहीं, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस एंड पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस. क्योंकि ये दोनों, वी हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्दो वी थिंक दैट सिरोसिस इज ए कंडीशन दैट इज that where there is coagulopathy, it is in fact a hypercoagulable condition. उस सूरत में thrombotic events इनमें ज़्यादा होते हैं. The most common cause of hepatic vein thrombosis remains cirrhosis and portal vein thrombosis as well. वो अगर Doppler ultrasound हो जाए तो अच्छा है, ताकि वो भी rule out हो जाएगा. And once the patient is out of HRS and you've done all this that I've told you about, then you can start the patient on diuretics and salt restricted diet, and you can send the patient home to come back in 2 weeks with follow-up with renal function tests. आप blindly and electrolytes, blindly जब diuretics देके घर भेज देते हैं, we forget about warning the patient that the patient can develop hyperkalemia and hyponatremia. एक प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा इनकाउंटर की है, और वो ये है कि पेशेंट का सोडियम नॉर्मल होता है और पेशेंट शदीद 1 गिलास पानी पे सारा दिन गुजार रहा होता है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने मना कर दिया होता है या उसके रिश्तेदारों ने मना कर दिया होता है. प्लीज़ याद रखें, द डेफिनेशन ऑफ cirrhotic hyponatremia is a sodium of 125. So if it is less than 125, it is only then that you restrict fluid. Till then, it is salt restriction. Salt restriction भी 2 grams of sodium chloride लिया जा सकता है, जिसको के रफली पेशेंट्स को ये मैं कहती हूँ कि आप चुटकी बराबर नमक खाने में जो डलता है फीकी तरफ रख के वो खा लें. अगर फिर भी पैलेटेबल नहीं है तो लीमू का रस इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें टेस्ट ऐड करने के लिए सिरका डाला जा सकता है. लेकिन मैं इनकरेज करती हूँ कि वो एग वाइट ज़रूर लें, फ्रूट्स ज़रूर लें, और निम्को ना खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है. अचार नहीं खाना, बहुत ज़्यादा नमक होता है. जब नान तंदूरी रोटी बनती है उनमें एक्स्ट्रा नमक डाला जाता है आटा गूंदते हुए, वो मना करते हैं.
एडेड सॉल्ट ना लें, लेकिन बिल्कुल फीका भी नहीं खाना, क्योंकि आप डायूरेटिक्स दे रहे हैं, सोडियम एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट नहीं है, एक चुटकी बराबर ही नमक होता है। वो होता ही है कि आप एक चम्मच ले लें, जो इनका 1 टीस्पून होता है, उसको भर लें हीट, उसको फिर आधा कर लें अपनी उंगली से, तो उतना पीछे वो इस्तेमाल हो सकता है 24 घंटों में। वो एक चुटकी बराबर 3 वक्त के खाने में पूरा आ जाता है। तो ये उनकी डाइट का है। दूसरा, पेशेंट्स जो है ना वो दलिया खिचड़ी करना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ गर्म ठंडे का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। डाइट हैज़ टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन, दैट हैज़ टू बी ए डाइट इन विच प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। एक छोटी गोल बोटी चिकन की खा लें, फिश की खा लें, अंडा ज़रूर लें, दूध ले सकते हैं अगर हज़म हो जाए। और आमतौर पे सिरोटिक्स रेड मीट बहुत अच्छा डाइजेस्ट नहीं करते, तो इसलिए मे बी इट्स बिकॉज इट्स हाई इन फैट, लेकिन उनसे नहीं डाइजेस्ट होता। तो वो मैं उनसे कह देती हूँ अगर खा सकें हजम हो जाए तो ले लें, वरना नहीं। सो डाइट, गुड डाइट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, वो फिर आपका बॉडी मास उनका कम होना शुरू हो जाता है एंड इट वर्सन्स द प्रोग्नोसिस। मैल न्यूट्रिशन वर्सन्स प्रोग्नोसिस इन डीकम्पनसेटेड सिरोसिस। तो एक वो, और दूसरा जो मेडिकेशन है और फॉलो अप, वो ज़रूरी है। अब अगर आप इस पेशेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, इसके रिलेटिव्स पूछेंगे जी हमें बाकायदा बताएं क्या इलाज है, कुछ ना कुछ इसके एंड में ये तो चलता रहेगा इसी तरह से, फिर आप कह सकते हैं कि यस यू कैन गो फॉर ए लिवर ट्रांसप्लांट प्रोवाइडेड यू कैन अफोर्ड इट, provided there is a donor available, provided you can afford it, and provided you can afford the treatment afterwards that is required. और अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो वही पैलिएटिव केयर के इंशाल्लाह हमारे सेशंस होने हैं, वो हम देखेंगे। वो तो हमारे प्राइमरी केयर के ही कॉलीग्स हमें हेल्प कर सकते हैं उस सिलसिले में, वही लुक आफ्टर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन वो इसी तरह से है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, अच्छी डाइट रख ली जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर ना करने दें पेशेंट का, और रेगुलरली उनके रीनल फंक्शंस और इलेक्ट्रोलाइट्स देखें। और उसमें फिर बड़े लंबे वाले सिलसिलों में ना पड़ें कि एल्ब्यूमिन लग रही है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ रही है, एंडोस्कोपी बड़ी रेगुलरली हम करवा रहे हैं, और पेशेंट को हम रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस करवाते चले जा रहे हैं, उसका नहीं कोई फ़ायदा। गैप भी बढ़ाया जा सकता है, बट देन इट इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। Thank you. Very briefly, I'll have a comment and then Dr. Farooq has a question. Usually मैं जब obviously जो जिस तरह डॉक्टर बुशरा ने बताया है, generally the way I phrase it, इस मरीज की फैमिली को और कि इनको हमें बताना पड़ता है कि देखें ये जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और ये जो फोकस है वो ये है कि हम अगर कोई, जाहिर बात है अगर सेप्सिस और अगर HRS सब कंट्रोल कर लेते हैं तो आप थोड़ा बहुत सर्वाइवल एडवांटेज दे रहे हैं, बट दे हैव टू बी टोल्ड मैं इसका जिगर ठीक नहीं कर रहा, ये वी आर ट्राइंग टू कीप हिम कंफर्टेबल एंड यू नो उसकी जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिगर ठीक नहीं कर रहे। और अगर वो पूछेंगे कि अगर आप ये कहते हैं कि जिगर ठीक कैसे होगा, तो यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट है, और लिवर ट्रांसप्लांट में 3 चीजें चाहिए, वेरी सिंपल। सबसे पहली है कि मरीज माने, मरीज का कंसेंट होना चाहिए, दूसरा ये है डोनर होना चाहिए, और तीसरा है पैसा होना चाहिए। तो ये ABC ये आप याद रखें कि कंसेंट, डोनर एंड फाइनेंसिस, तो ये यहीं पे लिवर ट्रांसप्लांट की सारी जो है ना वो गेम जो होते हैं, वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद देम। जी फारूक, यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि चूंकि DCLD के अंदर हाइपर जिंक यूरिया होता है, तो इस स्टेज पे जबकि पेशेंट HRS में भी है, तो एनी रोल ऑफ जिंक इन रिड्यूसिंग द मोर्बिडिटी ऑफ दिस पेशेंट, और फिर अगर जिंक चाहिए तो क्या हमें जिंक इन कॉम्बिनेशन विद जो मार्केट्स में प्रोडक्ट्स आती हैं उस फॉर्म में देना चाहिए, या जो ओनली जिंक आता है वो देना चाहिए? जो HRS की ट्रीटमेंट है उसमें मैंने जिंक की ट्रीटमेंट अब तक, जिंक के साथ ट्रीटमेंट पढ़ी नहीं है। अगर आपने कहीं पर, इफ यू रेड दिस, आप प्लीज हमें जरूर बताएं। नो मैडम, जस्ट जो सिरोटिक्स होते हैं उसमें हाइपर जिंक यूरिया मेंशन्ड है कि सिरोटिक जी जो जी, होते वो हैं, तो आई एग्री, सिरोटिक्स आर डेफिशिएंट इन जिंक, और लेकिन उसका
administration of zinc in order to treat HRS का नहीं मैंने पढ़ा, but I usually give zinc to patients in combination with another multivitamin that is commercially available and very easily available, वो मैं दे देती हूँ. जो बाकी zinc alone है वो नहीं मैंने कभी दिया, वो तो अलग से zinc acetate वगैरह मिलता है, वो तो विल्सन्स डिजीज की ट्रीटमेंट है, तो उसमें वो तो बाइंडर्स के तौर पे आता है. तो बट मल्टीविटामिन में मैं दे देती हूँ क्योंकि उसमें एडेड एडवांटेज ये है कि पेशेंट की वैसे भी मैल नरिश्ड होता है ना, तो वो आपको तो बाकी मल्टीविटामिन भी उसी तरह से ही चली जाती है. और मैडम रोल ऑफ जिंक इन एनकेफेलोपैथी? और बहुत बिल्कुल ही जो ईजल की गाइडलाइंस है उनमें आखिर में एक लाइन लिखी हुई है कि रिप्लेसमेंट ऑफ जिंक इज ऑफ बेनिफिट, बस उससे आगे तो नहीं है. इसलिए वो it is not a first line treatment of encephalopathy. थैंक यू. जो डॉक्टर असद कह रहे थे वो मैंने थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि एक चीज याद रख लें, 30% अगर उनसे आपसे रिलेटिव से ऐसे पेशेंट का प्रोग्नोसिस पूछें तो 30% पेशेंट्स विल डाई विद इन अ वीक, विद इन अ ईयर. और जो पेशेंट HRS के होते हैं दे यूजुअली डाई, उनकी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, विद इन 2 वीक्स तो खैर 50% मोर्टेलिटी है, बट यूजुअली 30 days, within 30 days of diagnosis about 35 to 40% patients usually pass away. HRS is very aggressive. Bushra, there is a question about role of mannitol in hepatic encephalopathy. Not established. No randomized control. मतलब कि literature जो है वो इसको verify नहीं करता. ये एक theory जरूर है that in hepatic encephalopathy you have there is a certain cerebral edema. लेकिन mannitol as such नहीं. Mannitol आपको बल्कि it will be deleterious because it leads to dehydration and it will worsen the hepatic encephalopathy. So no established role. और माइडोड्राइन का तो रोल डेफिनेट है हेपेटोरीनल सिंड्रोम में. द US यूज माइडोड्राइन, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं. माइडोड्राइन इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद albumin in the US. They do not have terlipressin. It's not available in Pakistan, but it is mentioned in guidelines. So yes, बिल्कुल. क्योंकि I think अमेरिका में terlipressin अब अप्रूव हुई है, if I'm correct. तो काफी देर तक ASLD तो terlipressin को या FDA ने अप्रूवल ही नहीं दिया था. Okay, any other question? We have time. Steroids in PSC, I don't know. It's a very interesting question क्योंकि आजकल आपको पता है कोविड का दौर है, तो स्टीरॉइड्स तो शायद पाकिस्तान में शॉर्ट हो गए हैं. तो आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव आइसोलेशन, लेकिन तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टीरॉइड्स एनकेफेलोपैथी को खराब ही करेंगे, ठीक नहीं करेंगे. अगर वो किसी और वजह से स्टीरॉइड का इंडिकेशन उसको हुई तो कोविड की सैचुरेशन बेहतर होगी तो उसका होश बेहतर हो जाएगा, लेकिन पर से स्टीरॉइड्स का कोई रोल नहीं. और लैक्टुलोज एंड रिफैक्सिमिन is in fact the treatment which is the जी बुशरा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा कमेंट करें. जी बिल्कुल. Lactulose is the treatment for not only acute hepatic encephalopathy, it is also the treatment that prevents hepatic encephalopathy. Patients decompensated है, उनको ये कहा जा सकता है you have to ensure 2 to 3 soft stools in 24 hours. तो वो they adjust the amount of lactulose accordingly. उनको मैं बता देती हूँ कि आपने 30 ml, देखें everybody is different. There are some people who will have a bowel movement with 20 ml HS. There is another group that will require 30 ml 3 times a day to have 2 to 3 bowel movements. So the amount and the dose of lactulose is not important. What is important is to make sure that there are 2 to 3 soft bowel movements in 24 hours. मैं तो वार्न भी कर देती हूँ कि अगर कॉन्स्टिपेशन हुई तो पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा और बेहोश हो जाएगा, तो इसलिए उसका आपने खुद एहतियात करनी है और अमाउंट खुद एडजस्ट कर लें. जो रिफैक्सिमिन है उसका वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पे स्टडीज हुई हैं जिसमें रिफैक्सिमिन एक्यूट एनकेफेलोपैथी में दी गई थी, बट इट सर्टेनली हैज़ ए क्लियर कट रोल in prevention of hepatic encephalopathy. In fact, rifaximin was approved after
a study that proved that within 6 months recurrence of encephalopathy was prevented with rifaximin. तो लेकिन एक्यूट में भी हम देते हैं क्योंकि ये हम सबको पता है कि जो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है उसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारे बैक्टीरियल पॉपुलेशन का है जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन द कोलन. So you reduce that population with rifaximin. It usually works. हम दे देते हैं. Even literature में small number of patients है, but it is proven. Branch chain amino acids का role है oral का. Oral branch chain amino acids help in acute hepatic encephalopathy. जैसे कि intravenous L-ornithine L-aspartate का role है in acute hepatic encephalopathy. Acute hepatic encephalopathy not grade 1, grade 2 to 3 में उसका role है. And branch chain amino acids preferably given in the oral form will have a role in treatment of hepatic encephalopathy. Branch chain amino acids are metabolized by the muscle, not by the liver. So you are not only providing nutrition to the patient, but you are also reducing the nitrate, urea cycle से ammonia prevent कर लो. COVID and decompensated ऐड करूंगा कि जो लोला है ऑर्निथिन और L-aspartate, इसकी जो डोज है दैट इज 20 ग्राम्स पर डे. तो यूजुअली अगर आपने आईवी देना ही है, ये भी अभी तक ईजल और एएसएलडी ने को बहुत इसको रिकमेंड नहीं किया हुआ, लेकिन वी डू यूज इट. लेकिन आप डोज का जरूर ध्यान रखें. द सर्वेलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ कमेंट हियर इन द ग्रुप every 3 to 6 months with ultrasound and alpha fetoprotein. And then Dr. Farooq, is a difficult question, how you treat decompensated cirrhosis with COVID. फारूक मैं तो रेफर कर देता हूँ मेरे पास चॉइस कोई नहीं है. प्रूवन डीकम्पनसेटेड सिरोटिक पेशेंट रेफर. लेकिन अगर स्टेबल है पेशेंट इज बीइंग मैनेज्ड एट होम, तो I do give, I remember one patient जिनको हमने steroid for 10 days दिए थे. तो not remdesivir but steroids, and patient did well. उसकी moderate disease थी. Saturation, if I remember correctly, dropped down to 92, 93. CT scan पे 90, around 30-40% involvement थी, and patient did okay. तो otherwise जितने भी आए हैं, और बहुत आए हैं, एक आज भी आया था, बिकॉज कि हमारे पास आइसोलेशन नहीं है, वो उतना नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है. आज जो पेशेंट आया था, he had Budd-Chiari syndrome, was very well maintained, warfarin पे भी था, और ascites वगैरह बैंडिंग भी उसकी 2-3 दफा हम कर चुके थे. The problem was जब वो लैंड किया तो उसकी saturation around 78-80 थी, and on 10 liter oxygen it came to about 93. तो वो तो खैर हमने आधा घंटा जो इमरजेंसी में जो उसके एक्सरे और बाकी चीजें करने, क्योंकि बिकॉज then we have to refer to a COVID ward. जी बुशरा, anything you have to add? हाँ जी, आई थिंक आई एग्री. रेमडेसिविर तो खैर नहीं दे सकते, लेकिन कोविड में डिकम्पनसेटेड सिरोसिस में कोविड विल टेक प्रायोरिटी. स्टेरॉइड्स देना पड़ेंगे, बट इसमें कोई शक नहीं है कि अंडरलाइंग कंडीशन अगर, तो उसमें फिर द प्रोग्नोसिस रिमेन्स पुअर अगर चूंकि डिकम्पनसेटेड सिरोसिस है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कोई, क्योंकि जितने हमारे पेशेंट्स हैं वैक्सीनेशन आउटराइट चाइल्ड सी में होगा तो मैं उसको नहीं करूंगा, बट योर सिरोटिक पेशेंट्स, और ये बहुत क्वेरीज आ रही हैं, हर मरीज ये तकरीबन पूछ रहा है, तो वी यूनिवर्सली वी से गो एंड गेट वैक्सीनेटेड. somebody with HCC and life expectancy of 4 weeks or 6 weeks, वो अलग बात है, but otherwise do refer them for vaccination, COVID vaccination. हाँ जी, वैक्सीनेशन शुड बी डन सूनर दैन लेटर. बस ये आप उनको पेशेंट्स को कह दें, सूनर दैन लेटर. अच्छा, ये अक्सर ने लिखा हुआ है सर्विलेंस का. सर्विलेंस की वही बात आ जाती है. इफ़ योर पेशेंट कैन, यू थिंक दैट द पेशेंट कैन अफोर्ड द ट्रीटमेंट फॉर HCC, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे जो भी हमने माइक्रोवेव एब्लेशन करनी है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द HCC एंड द चाइल्ड क्लास एंड द ECOG स्टेटस.
अगर आपके ख्याल में पेशेंट का वो नहीं कर सकता, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इतना मेटिकुलस फुल थ्रॉटल सर्वेलेंस का नहीं होगा। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स दे रही हूँ, क्योंकि कुछ अरसा पहले गाइडलाइंस में ये मेंशन हुआ था कि अगर पेशेंट आपका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है, तो बेशक आप इतना ज़्यादा उसका मेटिकुलस सर्वेलेंस ना करवाएं, क्योंकि an ultrasound every 6 months by a good experienced sonologist and an alpha fetoprotein every 6 months, सिर्फ आपको ये फ़ायदा होगा कि आप पेशेंट को ये बता सकते हैं कि अब तो HCC डेवलप हो गया है, अब ये प्रोग्नोसिस है, थिंग्स आर वेरी बैड। लेकिन उसके अलावा अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ऑफर नहीं कर सकते, तो शायद इतना अच्छा ये आइडिया ना हो। Thank you very much. It's been a very good session. हमारा अगेन मैं आप सब लोगों से को रिमाइंड कराऊंगा, जो हमारा पैलिएटिव केयर है, आई थिंक इट विल बी नेक्स्ट ट्यूसडे। तो ओवर टू किरण फॉर रैप अप एंड ज़ैर। जी किरण। Ma'am, you are muted. Oh. Thank you very much, Dr. Bushra and Dr. Kainat. And we would also like to thank Pakistan Society of Hepatology and Ferosan Laboratory for their unrestricted educational grant. And we would also like to extend our thanks to our chairman, Parsa Trust Chaudhry Suhail Akhtar, our director, Dr. Asad Ali Chaudhry, Dr. Amna, our facilitator, and Uzair, our coordinator, in IT support, Haris and Salman. And we will see you soon, inshallah. Allah Hafiz. Over to you, Uzair. Thank you very much, ma'am. Till next time, Allah Hafiz to all of you. And do remember to join palliative care echo session. I will send a reminder to you, all of you as well. Thank you.